Good day, everyone. Esteemed CS parents, my fellow members. I, CA Nimisha Rohit Agarwal, Sikasa Chairperson Merit Branch, extend a warm welcome to each of you to this insightful webinar by CIRC and hosted by Merit Branch. Today, we have gathered not only to celebrate your recent success in clearing your exams, but also to provide you with invaluable guidance as you embark on the next phase of your professional journey. First and foremost, hearty congratulations for your remarkable achievement. For passing the C exam is not a small feat, and we are honored to be a part of your continued growth and success. I would like to express my sincere appreciation to the organizer, that is Sikasa CIRC, who has meticulously planned this webinar so that aspiring professionals like you receive the necessary support and guidance to make informed decisions and navigate the challenges ahead with confidence. We are privileged to have with us today CA Rajiv Gupta ji, Sikasa Chairman CIRC, a distinguished figure whose insight and wisdom will undoubtedly inspire and guide you. We'll request CA Rajiv Gupta ji to share his words of wisdom with us. Rajiv sir, Thank you, over to you. Nimish. Thank you, Nimisha ji, moderator of the today webinar, and our two learned speaker, resource person of the today webinar, CA Payal Jain ji from Bhilai, past chairperson of the Bhilai branch, immediate past chairperson of the Bhilai branch, and another resource person with our own city, CA Gyati Gupta ji. जैसा निमिषा जी ने कहा कि भी रिजल्ट आया तो आप सबको बधाई। तो ये मेरे ख्याल से पहली ऐसी वेबिनार है, सबको बधाई जो पास हुए। इंटरमीडिएट एंड फाइनल बोथ रिजल्ट अभी पिछले कुछ टाइम से एक साथ आ रहे हैं और आईसीआई इस चीज में लगातार अभी आप दिस इज फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम 2024 वी हैव द 3 अटेम्प्ट इन इंटरमीडिएट एज वेल एज फाउंडेशन। तो सितंबर इज द अपकमिंग एग्जाम और रिजल्ट की जो परसेंटेज है और जो पासिंग नंबर्स हैं वो स्ट्रेंथ को शो करता है। पेपर तो हर बार की तरह ही आया है, लेकिन मेहनत जो सब कर रहे हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में रिजल्ट और अच्छा रहेगा। पर ये पहला एक ऐसा वेबिनार है जिसमें अब जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, यूजुअली आइदर द प्रोग्राम कंडक्टिंग फॉर द सिकासा साइड फॉर स्टूडेंट लेवल, समटाइम द प्रोग्राम फॉर द मेंबर लेवल, बट दीज आर द दिस इज इन मतलब इन माय मेमोरेबल memory, this is the first webinar which is useful for both the who are currently our students, say they pass the intermediate and go through the final and part of the final exam, and who clear qualify the member complete or CA final become the member. So this is a mixed seminar, and we have taking the both topic today. Once for the useful for the articles, article point of view, who clear their CA intermediate exam and worry about what the selection process and what the procedure yeah point out to be we have to notice before the selecting the articulation, because it is better than you have joined first and then transfer from the one firm to another firm. It is a difficulties for both the part, student as well as the employer say. So today we have the Payal Jain ji who focus on this area, and another topic, great topic, how to face the interview, because when we are the qualify the CA and become go with the any campus interview etc. So we have the selected opportunity is limited in sense, or if we miss that opportunity, that might be next opportunity will comes the after 1 year, 2 years, or might be so on. So Gyati Gupta with us who enlightened us how the face the interview and what the benefit points to carry at the time of the facing the interview. So these two topic, no doubt, is a wonder. Work, basically hard work in their profession as well as their family support to each and every person. So this webinar will be benefited to all the participants, and might be this recorded video lecture. Sometimes the result coming one day before. So student are might be the weekend is there, so they go for the traveling etc. But this recorded lecture, recorded webinar will be useful for them. तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, पास वालों को भी, जो हमारे स्पीकर हैं उनका फिर से धन्यवाद,
और मैं आगे की कार्रवाई के लिए टुडे प्रोग्राम मॉडरेटर निमिषा जी के बारे में इतना ही बोलूंगा कि अभी मेरठ में भी बहुत एक्टिवली हमारे पास चेयरपर्सन भी है, और करंटली सिकासा इस समय चेयरपर्सन मेरठ ब्रांच है। तो निमिषा जी की जो वर्किंग है और वो बहुत अप्रिशिएबल है। अभी रिसेंटली इन्होंने कंप्लीट किया एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस बड़े सक्सेसफुल तरीके से, तो उसके लिए उनको फिर से एक बार बधाई। तो आगे कार्रवाई के लिए मैं निमिषा जी को बोलूंगा कि वो आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू निमिषा जी। Thank you, sir, for your thought-provoking thoughts. Now it's time to welcome our first session speaker, CA Payal Jain ji. Thank you, Payal ji, for taking your valuable time for us. I will request Abuday Gupta, Culture Head of Merit Sikasa Committee, to introduce our speaker, CA Payal Jain ji. Am I audible? Yeah, you are audible, Abuday. So, good morning, ma'am. Myself, Abhinav Gupta. And now I would like to give the introduction of CA Payal Jain, ma'am. We are honored to have CA Payal Jain, ma'am, with us today. She is a distinguished chartered accountant and an MCOM graduate with certifications in concurrent audits and cooperative societies and trust audit. She has been leading the Bhilai branch of her firm since 2009, excelling in company audits, sustainability reporting, due diligence, and indirect tax, among other areas. As a former senior manager at Idea Cellular Limited in 2007-8 and a session practitioner with over a decade of experience in bank audits and GST implementation, Payal ma'am's contributions are remarkable. Notably, she was the first women chairperson of any of the branch in the state of Chhattisgarh of Bhilai branch of ICAI and a recipient of the India 5000 Women Achievers Award in 2021. Ma'am, it's a pleasure for all of us to have you on board. I would request you to share insights what you have gained from our impressive career and the remarkable achievements you have accomplished with our audience. Thank you, ma'am. Thank you, Abuday. I will request Payal ma'am to please continue with the session. Very good morning to all of you and a warm welcome. जैसे जी राजीव सर ने कहा, this is a very important session for all the people over here, those who have cleared intermediate as well as इसमें से आपको even those who have cleared final, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं definitely it would be helpful. Especially ज्ञाति जी का session तो बहुत ही important है. I am really thankful to CIRC and CA Rajiv Gupta ji for considering me to be the speaker. Thank you, Nimisha ji. You have always been a great person. I have been following your work and they are really remarkable. So I guess let's come to the topic immediately. और हम चाहेंगे कि इसको interactive बनाए. As many questions you all people have, just raise your hand and put your question in the box and we'll try to answer them immediately. ना कि हम ये सोचे कि last तक के wait करें. It's better कि आपकी queries there and there solve हो जाए and let us make it very fruitful one. Thank you, Abhyuday, also for a wonderful introduction that you have done for me. So, Yati ji, I guess you are sharing the screen for me. Just a minute. Yeah, no issues. By the time, let us understand what articleship is and why do we really need it. क्या हमें आर्टिकलशिप इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये मैंडेटरी है हमारे कोर्स में? आई मस्ट से कि ऐसा नहीं है. दिस इज अ मिथ कि आर्टिकलशिप इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारे लिए ये रेगुलेटरी है. इट इज नॉट दैट वे. सी, दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रेडिंग दैट यू लर्न जो मतलब फाइनल के एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या, इनफैक्ट आई शुड से कि 70% क्वेश्चंस आर प्रैक्टिकल और ये आप तभी रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं
जब आपने इनको प्रैक्टिकली किया है, इनफैक्ट इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद में भी आप काम जब करते हैं, आप वो चीजें ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे जो आपने प्रैक्टिकली सॉल्व किया है. इन आई शुड से वर्ल्ड में हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स यही एक सिंगल कोर्स है जो आपको ड्यूरिंग द ड्यूरिंग योर कोर्स करिकुलम it gives you practical training as well as it also pays you for that. So we should be proud about that कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तभी हम learning भी कर रहे हैं, practical training भी ले रहे हैं, and this helps you not only in your exams, it helps you for forever in after you're becoming a chartered accountant also, and after when you decide what career you want to take. So we do have some questions कि job or practice which is best. We are new to this domain, so want to know about the domains. I understand. हम meanwhile जैसे जैसे सेमिनार में आगे बढ़ते जाएंगे, आप आर्टिकलशिप के बारे में समझेंगे जरूर. And job or practice, I would say it is everyone's own personal view. आपको जॉब करना ज्यादा पसंद है या प्रैक्टिस करना ज्यादा पसंद है? आई कैन टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इट. आगे मेरे स्लाइड्स में और प्रेजेंटेशन में ये चीज आएगी, एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर वीकनेसेस, एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट, कि आपको जॉब पसंद है या प्रैक्टिस पसंद है. Okay, so understanding articleship, we have understood what definition is. देखिए technical definition में तो we don't need to go. It is basically 2 years of training that is given by your mentors to you to prepare yourself for being a chartered accountant, for giving your final exams, and of course ये आपके curriculum का part है. So yes, then it is actually a bridge बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. जैसे मैंने आपको बोला, कुछ चीजें आपने थ्योरेटिकली पढ़ी है, जैसे हाउ टू डू बैंक ऑडिट, हाउ टू गिव रिपोर्टिंग्स ऑफ कंपनीज, कंपनी लॉ, आपने लॉ में वो चीजें पढ़ी है, कैसे एनालाइज करना है, कॉस्ट एनालिसिस करना है, ये सब आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है. लेकिन प्रैक्टिकली ये एक्चुअली कैसे होता है, that you can understand only when you go in a manufacturing company. वहां का आप cost analysis देखते हैं, cost sheets देखते हैं, कैसे आप ये निकालते हैं कि वहां पे फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं, फिर आप उसमें सेल्स कर रहे हैं. तो दिस ऑल कम्स ओनली इन प्रैक्टिस. थियोरेटिकली आपको सब पता है, पर प्रैक्टिकली जब आप चीजें करते हैं, देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट्स. तो वो सारे कंस्ट्रेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं, दैट ऑल हैपेंस इन प्रैक्टिकली, एंड इट इज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस. ऑफ कोर्स ये आपके करिकुलम का कोर्स पार्ट है और आपको मैंडेटरीली इसको करना है. देयर आर सम मिथ्स दैट आई हैव बीन फॉलोइंग कि डमी आर्टिकलशिप कर लो, एंड यू नो स्टडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. ऑफ कोर्स स्टडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स कि दिस practical training, this articleship is also a learning, it is also studies that you have been doing. तो ये मिथ निकाल ले कि हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं भी करेंगे तो हाँ ऑफ कोर्स पास हो जाएंगे, बट देन ज्यादा अच्छे से ज्यादा नॉलेज के साथ आप तभी पास हो सकते हो जब एक्चुअली आप आर्टिकलशिप करते हो. I have got a question. आर्टिकलशिप में स्विच पॉसिबल है क्या? Yes, switch is definitely possible. It is legal also. But then again, इसके भी pros and cons हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. Duration and eligibility, I guess अभी in the new course it is changed. आपको after your I guess second year of articleship, सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद में, और 2 years ऑफ आर्टिकलशिप आपकी हुई है न्यू कोर्स में. पुराने कोर्स में और अलग थे. द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन ICAI वेबसाइट, ऑन योर BOS थिंग्स ऑल्सो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप वो देख के you can understand how eligible you are, the criterias, and the durations also. How to prepare for articleship, ये बहुत important चीज है. बिफोर यू नो यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम्स एंड नाउ यू आर इन अ कंफ्यूजन कि मैं कहाँ आर्टिकलशिप करूँ, कैसे करूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है. सो प्रिपेयरिंग फॉर आर्टिकलशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
आपको सेल्फ असेस करना है, कंसिडरिंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स। आपके लिए क्या बाहर जाना ठीक है या घर के कंफर्ट जोन में रह के वो करना ठीक है? क्योंकि देखिए, इट इज वेरी इजी टू जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आउट ऑफ द स्पेस दैट यू आर इन। अपने घर से, अपनी सिटी से बाहर जाना बहुत इजी है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट देन ऑफ कोर्स इट कम्स विथ इट्स ओन डिफिकल्टीज। तो आपको ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार है, क्या आप इंडिपेंडेंटली बाहर रहने के लिए तैयार है। घर में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, आप सेम सिटी में हो तो हो सकता है, जैसे अगर आप निमिषा जी के यहाँ या राजीव जी के यहाँ आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आप हो सकता है आप इनको पहले से ही जानते हैं, ज्ञाति जी को आप पहले से ही जानते हैं, एंड वो एक रैपो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। पर क्या बाहर जाके नए लोगों के साथ में आप मिक्सअप हो सकते हैं? आप क्या वो सब कुछ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जहां पे आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके नोन्स नहीं है, आपके सिबलिंग्स नहीं है? सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू एनालाइज। आर यू रेडी टू गेट दैट वर्क प्रेशर जो बाहर जाने से होता है, या हम अभी उसके लिए रेडी नहीं है? तो इट इज ओके इवन इफ यू डू योर आर्टिकलशिप इन द सेम सिटी। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बाहर ही जाना जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू स्टैंड अलोन इन द सिटी। ये आपको सेल्फ एनालाइज करना है अपने आप के बारे में कि आप कितने रेडी है टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड टू ग्रो फर्दर। सो ये जब आप अपने आप के बारे में सोचे, आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं साथ में, आपके लिए बाहर रहना कितना इजी है, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस कितने अच्छे हैं, एंड आपके घर का कल्चर कैसा है, आपकी सिटी का कल्चर कैसा है। यू हैव टू एनालाइज वेरियस पॉइंट्स एंड देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, अपने सेम सिटी में रहना चाहते हैं, या आप बाहर जाना चाहते हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, योर इंटरेस्ट एंड योर गोल्स। यहाँ पे ये जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली कितना कर सकते हैं, आप में वीकनेसेस क्या है ये भी आपको समझना होगा। देन अगेन इट कम्स अबाउट योर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट में ऐसा है कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रख रहे हैं। आप सी देयर आर सो मेनी एवेन्यूज ओपन फॉर यू, नॉट ओनली ड्यूरिंग आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ड्यूरिंग आर्टिकलशिप ऑल्सो। तो आपका इंटरेस्ट किस में है? क्या आपका इंटरेस्ट एआई में है? क्या आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में है? क्या आपका इंटरेस्ट ऑडिटिंग में है? क्या आप टैक्सेशन करना चाह रहे हैं? क्या आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन करना चाह रहे हैं? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप ये समझे कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस चीज में जाना चाह रहे हैं। प्रेफरेबली मैं अगर अपना व्यू बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि दिस इज अ पीरियड ऑफ 2 years जब आपने सब कुछ करना चाहिए। You know, you should get a heck of everything. आप ऐसी फर्म में जाए जहां पे सब कुछ है। आप जीएसटी भी करिए, आप टैक्सेस भी करिए, आप एआई भी देखिए, आप ड्यू डिलिजेंस भी देखिए, आप इंटरनल ऑडिट भी देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी देखिए, एंड देन एट द एंड ऑफ योर दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हुआ है और उसके लिए आप आगे बढ़िए। सो वी हैव कशिश who have raised hand. Kashish, please ask me, what do you wish? Kashish? I think इनको अलाउ करना पड़ेगा। सर वही ऑप्शन चेक करें। Okay, so meanwhile, we have a question कि what are the aspects one should notice in finding a good firm? Yes, this is very important. ये हमारे आगे के slides में आएगा। टाइप्स, जहां मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स भी बताऊंगी और उनको कैसे चूज करना है वो भी बताऊंगी। सो आई वुड आंसर दैट क्वेश्चन एट दैट टाइम। मीनवाइल कशिश जी, आप निमिषा जी, इज कशिश अलाउड? Trying Yes, to allow her. ma'am, I allowed her. She can ask the questions. Kashish, unmute yourself. Okay, let's continue. So we were there कि आपके इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया, there are some firms which are specifically working in their own domains.
तो आप ऐसे फर्म्स में जा सकते हैं, बट हाँ प्रेफरेबली अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे, आप ये कहेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहूंगी, तो मैं जरूर ऐसी ही फर्म में जाना चाहूंगी जहां मुझे हर काइंड ऑफ वर्क सीखने मिले, क्योंकि ये जो 2 साल मुझे मिले हैं, 3 साल जो मुझे मिले हैं, that is for learning. So I would definitely want to learn everything in this short period of 3 years, 2 years, and after that I would decide कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि जैसे कहा जाता है जब तक आपने कुछ चखा ही नहीं आपको क्या पता कि वो मीठा है या कड़वा है. Let us taste everything and then you decide कि आपको कड़वा पसंद है या मीठा पसंद है. नाउ वी कम टू गोल्स. तो यस ऑफ कोर्स कि आपका क्या गोल है, आगे जाके आपको जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको इंडस्ट्री में जाना है, आपको कोई प्रैक्टिसिंग फर्म ज्वाइन करना है, या आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस ज्वाइन करना है. देन अगेन आपको उसमें क्या करना है. जैसे कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मुझे तो आर्टिकलशिप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करनी है, क्योंकि आगे जाके मुझे इसी फील्ड में वो करना है. सो देयर आर सर्टेन फर्म्स which are providing you articleship in specific things also. आप accordingly वो भी choose कर सकते हैं. So this is how you have to prepare yourself कि मुझे मेरे strengths क्या है, मेरे weaknesses क्या है, मेरे interests क्या है, मेरे goals क्या है, and accordingly you decide कि मुझे articleship कहाँ और कैसे करनी है. You'll have to research of course accordingly कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स. वी हैव बिग फोर्स, वी हैव मिड साइज, वी हैव स्मॉल फर्म्स. हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझेंगे. देन वी ऑल्सो हैव इंडस्ट्री वर्सेस प्रैक्टिस. आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, आगे वी विल टॉक अबाउट दैट. Good morning, ma'am. Which domain would be beneficial as a CA with AI? See, AI is a very recent and novel area, and of course, as people are saying कि AI would replace chartered accountants, no, definitely it is not going to replace you. But of course, आपका काम इसके कारण बहुत कम हो जाएगा, और कम हो जाने से you can, since you have so much of potential, जो थोड़े से क्लरिकल वर्क या थोड़े से रेगुलर वर्क जो आप कर रहे हो, वो आपको एआई की मदद से मिल जाएंगे. जो 4 दिन में आप अगर कोई ऑडिट कर रहे हो, वो आप 1 घंटे में कर सकते हो. तो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम to give better services to your clients, and in that way you can get better work and better potential and better client coverage, you can say. So of course it is a good area, but ye articleship period mein you'll have to learn that, and after becoming a chartered accountant you can go into this area with being in a data analyst, data pooling, ये सारी चीजें इसमें आती है. ओके, सो देर आर टाइप्स ऑफ फर्म्स. पहले तो आ जाते हैं बिग फोर्स, जिसमें आते हैं डेलॉयट्स, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी. यू ऑल्सो हैव बिग 6. ये इंटरनेशनल फर्म्स है. यहाँ पे आपको हेल लॉट ऑफ वर्क मिलेगा, बट उसके साथ में वर्क प्रेशर भी मिलेगा. यू विल हैव टू हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स. आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीजें मिल रही है लॉन्ग, लेकिन उसके साथ में एक एडेड ये चीजें आ रही है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स आ रहे हैं. प्लस कई बारी बिग 4 में, बिग 6 में दे पुट यू इन डिपार्टमेंट्स which so that way, like अगर आपको सिर्फ स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट में डाल दिया तो यू विल बी गेटिंग अ नॉलेज ऑफ ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट्स और स्टैट्यूटरी वर्क. देन वर्क प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है, बट ऑफ कोर्स इट हैज इट्स ओन लर्निंग्स ऑल्सो. यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे से सिखाई जाती है. सो यूल हैव टू डिसाइड. इनके अपने इंटरव्यूज होते हैं. इवन फॉर आर्टिकल्स दे हैव देयर इंटरव्यू राउंड्स. आपको वो क्लियर करने होते हैं, रिटन राउंड्स, देन HR राउंड्स. यूल हैव टू क्लियर दैट, एंड अकॉर्डिंगली दे लेट यू नो कि आप सिलेक्टेड है या नहीं है, या किस डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड है, किस सिटी में सिलेक्टेड है. आई गेस बिग 4s आर नॉट वेरी
readily available in mid size और small cities, तो आपको इसके लिए भी तैयार होना होगा कि आप क्या बाहर जाने के लिए रेडी है और आपका बैकग्राउंड क्या इसको अलाउ करता है. बहुत लार्ज क्राइम्स होते हैं इनके, बट देन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी होती है. तो आपको ये भी देखना है कि क्या आप फाइनल के अपने एग्जाम्स के लिए इनके वर्क प्रेशर के साथ में आप क्या हैंडल कर सकेंगे. सो दिस इज द strengths and the weaknesses of big fours. Then we have mid-size firms. Mid-size firms में everything that is not a big four is mid-size firm, right? They have everything. बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पर, बहुत वैरायटी ऑफ वर्क होता है, बट देन अगेन आपको you can balance between your work as well as your personal life. डाइवर्स क्लाइंट बेस होता है. ऑफ कोर्स जब आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, ये एक चीज आई गेस डेफिनेटली ज्ञाति जी वुड बी कवरिंग ऑन टू इट, बट आई वुड लाइक टू पिन पॉइंट हियर कि आप जहां भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इन बिग फोर्स, इन मिड साइज, इन स्मॉल फर्म्स, वेर एवर यू आर गोइंग, प्लीज सी टू इट कि यू ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम दीज फर्म्स. आपको किस डिपार्टमेंट में जाने मिलेगा, आपको क्या क्या वर्क क्लाइंटल मिलेगा, आप किस एरियाज में वर्क करोगे, ये सब आप समझिए. यू आस्क दोज क्वेश्चंस, देयर इज नो हार्म इन दैट. हाउ टू आस्क, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट definitely ask anything and everything you want to understand about their firms also. So mid-size firms में ये होता है कि आपके पास diverse client base होता है, but then you get time for managing your personal life. You get a work kind of a balance between your work and personal life. And of course personal life में आप जो studies को importance देना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा. Then there are small firms, थोड़े से जिनके पास में क्लाइंटल कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट मिलता है, पर्सनल टच मिलता है. मे बी दीज आर अवेलेबल इन योर सिटी एज वेल. एंड सो क्योंकि ये आपके खुद की सिटी में है, तो आपके पास में ये एक वो होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रह के यू आर वर्किंग एंड इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स. आप एक नोन पर्सन के पास में आर्टिकलशिप करते हैं, तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, be it anything, you want to leave, you want to understand कि आप कैसे पढ़ाई करें, you want to have that mentoring, तो ये सब चीजें आपको स्मॉल फर्म्स में बहुत इजीली मिलेगी. आप एक डायरेक्ट पार्टनर लेवल पे इंटरेक्शन कर सकते हैं. आप अगर ये सोचेंगे कि बिग सिक्स में, बिग फोर्स में, तो आई गेस व्हेन आई हैड बीन देयर फॉर 6 months इन डेलॉइट्स, मैंने वहां के पार्टनर्स को देखा भी नहीं था. तो but in mid-sized firms, in small firms, you get that personal interaction, and learning directly from the partners is always beneficial. I have a question over here. We have listened, there's a difference in working of a mid-sized firm of a small city like Meerut than those of Delhi NCR. Can you discuss about this? Yes, in terms of exposure, client base, etc. Yes, definitely we can discuss about it. See, there is nothing I would say कि city से कोई फर्क पड़ता है. It is the client base. और अभी we are working globally. आप एक small city like Meerut में भी रह के you can give services to Dubai, to Singapore. तो फिर दिल्ली क्या चीज है. सो इट हार्डली मैटर्स कि किस सिटी में आप है, बट हाउ यू आर वर्किंग एंड द फर्म हैज व्हाट क्लाइंट बेस. यू नेवर नो अनलेस यू गो देयर. बाहर मेट्रोज में जाने के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, स्मॉल सिटीज में रहने के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट आई वुड नेवर से कि अ स्मॉल सिटी वुड डिफाइन कि उनके पास में क्लाइंटल वो नहीं रहेगा जो क्लाइंटल बाहर की सिटीज में है. क्लाइंटल्स आज के एरा में सबके पास होता है. आप जब इंटरव्यू के लिए जाए, आप ये बात को समझे, उनसे पूछे, आपके जो इंटरव्यूअर है उनसे ये बात करिए कि आपके पास क्या क्या क्लाइंट्स है और हमको उसमें क्या क्या वर्क मिलेगा. ये एक चीज. एंड सेकेंड थिंग आई वुड से, these people are there to teach you, so it is up to you. आप कितना इंटरेस्ट डाल रहे हैं, आप कितना लर्निंग करना चाह रहे हैं, आप आगे से जाके कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप. इज इट
दैट आपको जितना वर्क अलॉट किया है आप उतना ही कर रहे हो, या आप अपने बाजू में जो बैठे हुए हैं उनका क्या वर्क है वो भी देख रहे हो, उसको भी समझ रहे हो. सो इट इज ऑल अप टू यू हाउ यू हैंडल योर दीज 2 years and 3 years. आप जितना इंटरेस्ट लेंगे ऑब्वियसली आपके मेंटर्स आपको उतना ही सिखाएंगे, और आप बस अगर वो अपना एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो फिर आई डाउट कि यू वुड लर्न एनीथिंग इवन इफ यू गो इन कैनेडा एंड डू योर आर्टिकलशिप. सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू डू दैट. So in small firms you get broader personalities, responsibilities. ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली क्लाइंटल से भी काम हैंडल करें, उनके क्वेरीज सॉल्व करें. यू गेट दैट फ्रंट थिंग जो आपको मे बी हायर मिड साइज और बिग फोर्स में नहीं मिलता है. सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाह रहे हैं, आप कितनी लर्निंग चाह रहे हैं, आपके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, एंड देन यू डिसाइड कि किस टाइप ऑफ फर्म में हमको जाना है. इज इट पॉसिबल टू वर्क इन डिफरेंट एरियाज व्हाइल बीइंग इन अ बिग फोर? I doubt about this. Normally big fours do not have this culture. वो अपने एक डिपार्टमेंट में डाल के आपको उसी में कंटिन्यू करते हैं. बट येस, while you go for an interview you can ask for this and you can get it committed from them. But अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं होता है. They put you in one single department. Ma'am, ITG training is pending, so should I still apply for firms or wait till completion of ITT? I guess applying for the firms is not difficult, not a problem. Your mentor can decide कि वो आपके साथ में इस situation में क्या कर सकते हैं. तो ITT ट्रेनिंग के लिए आप इमीडिएटली अप्लाई कर दें और साथ में आप फर्म्स के लिए भी अप्लाई कर दें. और जिस भी मेंटर के यहाँ आप जाना चाह रहे हैं, जिस भी फर्म में आप जाना चाह रहे हैं, तो यू कैन डिस्कस विद देम कि ITT ट्रेनिंग हमारी इनकम्प्लीट है तो हम क्या कर सकते हैं. देन वी हैव इंडस्ट्री वर्सेस प्रैक्टिस. सो ऑफकोर्स इसमें ऐसा है कि आप आगे जाके इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं. ये एक चीज है जिसमें आपको ये समझना है कि यू वांट टू डू अ जॉब और यू वांट टू गो इनटू प्रैक्टिस. दीज आर बेसिकली 2 डोमेन्स. देन प्रैक्टिस में आपका ये हो सकता है कि आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी और की बड़ी फर्म में या किसी और के साथ पार्टनरशिप करना है, या कहीं पे प्रैक्टिसिंग जो फर्म्स है उनमें आपको एज अ जॉब बट इन प्रैक्टिस ये करना है. तो दिस यू हैव टू डिसाइड. बट येस, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप ऑल्सो यू थिंक अबाउट इट. और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आगे जाके आपको कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री ही ज्वाइन करनी है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग ही करना है या कोई SEZ में जो ज्वाइन करना है, तो our institutes allows you to have a industrial training for a certain period. आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं. You can go in that industry and work for a certain period so that it gives you background of what you want to do in future also. एंड ऑफकोर्स अगर फ्यूचर में आपको नहीं भी करना है तो जैसे ये वाला एक जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला पार्ट है, दिस ऑल्सो अगेन हेल्प्स यू. जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में ही कि आप हर चीज को समझे, हर चीज को करें, सो दैट at the end of your training and after becoming a chartered accountant you have a knowledge of everything. तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आपने जरूर करनी चाहिए. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कोई CA के अंडर एक स्पेसिफिक सेक्टर में वर्किंग करते हैं, सो दैट यू गेट अ ट्रेनिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री. जैसे कोई स्टील प्लांट हो गया या कोई सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, और एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट यू हैव इन योर इन सिटी. आप वहां जाके एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर अ स्पेसिफिक स्टिंट आप ये कर सकते हैं. शैल वी गो अहेड? Do we have questions? No. So now here somebody had asked me, how do we find firms? So here it is, finding opportunities. आप कैसे फर्म डिसाइड करेंगे? आप अपने सिटी में लिस्ट कीजिए कितने फर्म्स है, किस फर्म में कितने पार्टनर्स है, कौन सी प्रोप्राइटरशिप है, और या किसके पास कितने क्लाइंट्स है. गो एंड गिव इंटरव्यूज ओवर देयर. आस्क क्वेश्चंस टू योर मेंटर्स कि आपके लिए वहां पे क्या क्या है ऑन योर टेबल, एंड देन यू डिसाइड कि आपके सेम सिटी में क्या क्या है आपके लिए अवेलेबल. हो सकता है आप ये सोच रहे कि नहीं दिल्ली में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मुंबई में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बट यू नेवर नो कि आपके यहाँ पे भी, आपके सेम सिटी में भी वो क्लाइंट्स हैं जो शायद आपको दिल्ली मुंबई में भी ना मिले. लाइक अभी
we had a person, I would in fact even name him CA Karthik Jindal. He is from a very small city in Haryana. Hardly वहाँ का population भी 3 या 4 लाख 5 लाख है as far as my knowledge. और उसमें से he is working for Ind AS, he is working for IFRS, and he is working, ये सारी चीजें he is giving services to people even out of India and all over India. So अगर ऐसी फर्म आपके सेम सिटी में भी है तो आप उसके वहां पे रह के भी आप ये सब चीजें सीख सकते हैं. So it is, as I already told, it is not city that matters, it is the work that matters. तो आप अपने यहाँ की सिटी में क्या क्या फर्म्स है उसको लिस्ट डाउन कीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज कीजिए. देन यू कैन गो टू द सिटीज दैट आर अराउंड यू. जैसे अगर मीरठ है, मीरठ के आसपास गाजियाबाद है, दिल्ली है, एनसीआर है, वहां पे आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, यू डिसाइड अबाउट दैट. एंड वहां पे भी आप लिस्ट डाउन कीजिए, आस्क पीपल अराउंड यू. आपके यहाँ के जो सीएज ऑलरेडी है या आपके जो सीनियर्स है उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए, अपने नेटवर्क में पता कीजिए. एंड देन you go and give your interviews, you ask questions to them and understand, and then accordingly decide कि आपको किस फर्म में जाना है. In this your networking helps. नेटवर्किंग कैसे बनती है? तो नेटवर्किंग आप जो सिकासा एक्टिविटीज होती है आपके वहाँ पे, उससे आपकी नेटवर्किंग बनती है. आप स्टूडेंट्स से मिलते हो, आपके सीनियर्स से मिलते हो, उनसे पता कीजिए. दिस इज वे योर नेटवर्क हेल्प्स यू. एल्यूमिनी नेटवर्क होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं. यहाँ से आपको पता चल सकता है कि how to get names of the firms. आप अपनी ब्रांच से भी डिटेल्स ले सकते हैं. देन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. देन देर आर मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, जैसे लिंक्डइन हो गया या ICI के जॉब पोर्टल हो गए. देर आर अदर पोर्टल्स ऑल्सो. ऑनलाइन भी आप काफ़ी सारी नॉलेज निकाल सकते हैं या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. अपना प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करके रखें, एंड इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल. ऐसे नहीं कि यू पुट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आई गेस इंटरव्यू ज्ञाति जी शायद इसमें टच करे. और how to prepare a resume, you get the sample resumes also. आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजें, हाँ, पर ये जरूर ध्यान रखें अपने रेज्यूम में वो ना लिखे जो आप है नहीं. राइट एवरीथिंग दैट इज वेरी ट्रूथफुल, बिकॉज इंटरव्यू में सबसे पहले आपका रेज्यूम एनालाइज किया जाता है. आपने उसमें लिख दिया कि हाँ मैंने लिटिगेशंस में काम किया है, और पता चले आपको लिटिगेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है. सो द इंटरव्यूअर व्हेन ही आस्क्स यू कि व्हाट इज दिस दैट यू हैव रिटन इन योर रेज्यूम, you should write only those things which are which are actual and which you can answer up. So this way you can get knowledge about the firms in around you, in the cities that are near to you or the cities outside also, and accordingly आप उसमें से decide कर सकते हैं. Then cold mails and applications, जैसे मैंने आपको बोला, अपना प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखें and make it very professional so that anyone and everyone who asks you, आप उसको forward करें so that people can approach to you for articleship training they can provide to you. Then you research about the firms. जिस भी firm को आपने shortlist किया है उनके बारे में भी रिसर्च करें कि उनके पास में क्या क्या वर्क है, उनके पास क्या क्या क्लाइंटल है और आपको क्या क्या मिलेगा. आपके जो की स्किल्स एंड अचीवमेंट्स है वो जरूर हाईलाइट करें अपने एप्लीकेशंस में, अपने रिज्यूम में. जैसे अगर आपने सिकासा कमिटी में वर्क किया है, या आपने अभी जैसे निमिषा जी ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था उसमें अगर आपने कुछ वर्क किया है, दिस ऑल हेल्प्स यू. द मेंटर्स सी दिस कि आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आप में मैनेजमेंट स्किल्स कितने हैं. एंड प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स यू दिस वे कि आर्टिकलशिप आपका एक 10 to 6 वाला जॉब काइंड ऑफ है, तो उसके पहले और उसके बाद में आप क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स आपको स्टडीज करनी ही है, आपका CA फाइनल एग्जाम आपको क्लियर करना ही है. So how do you manage time? How do you manage your life? This all can be represented from your
achievements, from your skills that you are putting in your resume. So this should be definitely put up in your resume. I have certain questions over here. Ma'am, though 3 attempt CA finalists need good references for even mid-sized firm articleship. How many days do I have to wait to call from firms mid-size for interview after sending resume? See, normally mid-size firms में आपको 2 या 3 दिन जरूर वेट करना चाहिए, और उसके बाद में you can again put up a polite mail or a WhatsApp, or you can just visit that firm and ask them कि हमारे resume का क्या update है. And I should understand कि 3 या 4 दिन में you get a reply definitely. और अगर नहीं भी मिलता है तो you can again approach back. That's never an issue. And even if you get a negative answer, that also should never hamper you. आप कोई और firm में try कर सकते हैं. There are not less number of firms in and around you always. I am standard things that should be included in resume. Please elaborate. Okay. I guess ये ख्याति जी शायद अपने इसमें, ख्याति जी you would be covering this under you, या मैं इस पे touch up कर दूँ? I think Gyati will be. ख्याति जी, निमिषा जी आप कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया. I think Gyati will be covering this. Okay, Gyati will be covering this, I guess, कि resume में क्या क्या include करना चाहिए. But of course छोटा सा मैं आपको बता दूंगी कि resume में अपने सारे professional things जैसे right from 10th 12th आप उसको डालें. Then आपने during your tenure of CA आपने क्या क्या किया, आपके ITT training, कुछ और अलग आपके certificate courses, diploma courses है तो वो सब डालिए, और make it very professional. अपने स्किल्स डालिए, अपने और कोई अचीवमेंट्स है, लाइक अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो सब है वो भी आप जरूर डालिए. बाकी ख्याति जी would be covering it in detail. Payal ma'am, I would not be touching upon this resume and cover letter, so you can deliberate more onto it. So I'll be taking interview specific questions only. Okay. ठीक है. एनीवेज मैंने बताया ही था, जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस में एक कवरिंग लेटर जरूर बनाएं. ऐसे नहीं कि बस आपने एक रिज्यूम बना दिया और उसको दे दिया. आप साथ में एक कवरिंग लेटर बनाएं, पुटिंग इट अप, व्हाट यू से, एड्रेसिंग द स्पेसिफिक फर्म जहां पे आप ये अपना रिज्यूम दे रहे हैं कि टू ABC फर्म ऑफ मीरठ, आई वांट टू अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप एट योर प्लेस एंड आई एम अटैचिंग हियर विथ माय रिज्यूम. These are my contact details. Please call me up for an interview session. And ऐसा करके एक आप छोटा सा covering letter जरूर बनाएं और उसके साथ में अपना resume attach करें. This looks more professional. The key elements that should be included in your resume is your educational qualification right from 10th. ये नहीं कि अपने LKG से आप start कर रहे हैं, but हाँ, right from 10th 12th आपका क्या ranking था, उसमें कितने percentage आपको मिले थे. Then coming to your graduations, then your foundation exam, your intermediate exam, उसमें आपके कितने परसेंटाइल आए थे, कितने अटेम्प्ट लगे थे, ये भी जरूर डालिए. कोई इसमें व्हाट यू से शर्म वाली कोई बात नहीं है. लगे हैं 2 अटेम्प्ट, लगे हैं, नो issues about that. But yes, of course, जब the interviewer ask you कि इतने attempt क्यों लगे, तो accept it very politely and very nicely कि सर कहीं ना कहीं मेरे में कोई गलती रह गई थी, लेकिन of course जब अगर मैंने इसको पास कर लिया है अब एग्जाम को, तो डेफिनेटली मेरे वो जो गलतियां थी मैंने उसको ठीक कर लिया, एंड आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं अपनी गलतियों को ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने पास किया. सो देयर इज नो हार्म राइटिंग इन कि मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे. अगर कहीं आपने कोई साथ में कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, कोई टैली का कोर्स किया है, कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स किया है, जोहो का कोर्स किया है, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. आपके पास में और क्या स्किल्स है, आप क्या AI को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आज के दिन में, तो ये सब चीजें भी आप उसमें. लेकिन हाँ, जरूर वही चीजें डालें जो आपने एक्चुअली की है. सिर्फ चैट GPT से एक रिज्यूम को कॉपी कर लिया और उसको पेस्ट करके डाल दिया, डोंट डू दैट. इट गिव्स अ बैड इंप्रेशन.
देन टेलरिंग एप्लीकेशंस फॉर ईच फर्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिस भी फर्म में आप जा रहे हैं उसका रिसर्च कीजिए, वहां पे क्या क्लाइंटल है वो पता कीजिए, आपका सच में अगर उसमें इंटरेस्ट है। जैसे अब अगर मेरे पास में कोई आ रहा है, उनको पता है कि मैं इंटरनल ऑडिट में काम कर रही हूँ या मैं सस्टेनेबिलिटी में काम कर रही हूँ, तो राइट अबाउट अकॉर्डिंगली कि मैम आई वुड लाइक टू डू माई आर्टिकलशिप इनटू सस्टेनेबिलिटी, इसलिए आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन योर फर्म, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा आप एक स्पेसिफिक फर्म स्पेसिफिक कवरिंग लेटर बनाए, दिस गिव्स अ गुड इंप्रेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको ख्याति जी जरूर बताएंगे, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी उसमें कवर होगा शायद। मैम कैन यू गिव इनसाइट व्हाट इज कवर लेटर? कवर लेटर जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एक स्पेसिफिक लेटर बनाना है एड्रेसिंग द फर्म, सब्जेक्ट एंड आई वुड लाइक टू गो इनटू योर फर्म, गेट सिलेक्टेड इन योर फर्म, प्लीज, उसको एक कवर लेटर बोलते हैं। एंड देन उसमें एक अटैच होता है रिज्यूम, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है। मैम आई हैड कंप्लीटेड 1 स्टॉक मार्केट कोर्स, शुड आई ऐड दिस? यस, डेफिनेटली यू शुड ऐड दैट। आई एम परसुइंग, I am pursuing graduation over 50 kilometers, form 112 won't work, how to solve this issue? ये बहुत टेक्निकल इशू है, इंस्टीट्यूट के SSP पोर्टल में इसकी सारी डिटेल्स है, बट ऑफ कोर्स मेरा फोन नंबर है, हम इसको 1-to-1 ले लेंगे। ओके, देन टेक्निकल वर्सेस बिहेवियरल क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर सिकासा में कुछ काम किया है, आपने कोई कल्चरल एक्टिविटी की है, ये सब की है, तो ये भी आप जरूर अपने रिज्यूम में डालें। दिस gives an impression of how are your behaviors, like आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है, ये सब चीजें इसमें पता चलती है। आई हैव सम sample resumes also if time permits, हम end में इसको लेते हैं। Let us go ahead. Now next would be overcoming challenges. So of course working into articleship, in fact मैं तो ये कहूंगी कि हमारा जो CA कोर्स है, this is the toughest course, but you cannot say it's an impossible course. अगर आप ठीक से सब कुछ प्लान करें, मैनेज करें, तो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट कोर्स। अभी परसों नरसों ही मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रही थी कि अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ वेरी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो दिन में सिर्फ 2 घंटा पढ़ते थे, बाकी समय he used to work to help financially to his family and still he cleared his CA in first attempt. तो ऐसा नहीं है कि it's an impossible course, आप इसके साथ रह के भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, but yes you need to have that dedication. I remember मिस्टर धोनी की जो मूवी थी उसमें उन्होंने एक चीज कही थी, इफ यू पीपल हैव सीन दैट, कि हम मैच वही हार गए थे जब द अदर क्रिकेटर वाज देयर ऑन द ग्राउंड। हम मैच तब नहीं हारे थे जब हम मैच खेल रहे थे। सो दैट वे ओनली, जब हमने हमारे दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि हमको CA बनना है, तो नन ऑफ द चैलेंजेस वुड बी देयर विच वुड हिंडर यू। पर अगर आपने यही डिसाइड कर लिया है कि नहीं ये तो बहुत टफ है और ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो देन नोबडी कैन हेल्प यू। सो ओवरकमिंग चैलेंजेस, हैविंग दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, और चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, अप्स एंड डाउन्स है, तभी तो आपकी बॉडी भी काम कर रही है। सो अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू बी देयर, बट देन दीज अप्स एंड डाउन्स को हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं, और हैंडल करके हम और कितने अच्छे से ग्रूम हो रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो यस, challenges would be there, how to overcome them is more important. मैं यहाँ पे कुछ चीजों में टच करूंगी. So I have some few more questions. Ma'am, I have done Tally course, but it was a long time ago. Should I mention it? Definitely you should mention it. You can put year of doing that Tally course.
so that आपने जो भी वर्जन ऑफ टैली सीखा था, द मेंटर वुड अंडरस्टैंड दैट कि उस ईयर में कौन सा मेंटर था, कौन सा वर्जन था. सॉरी मैम, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. वाओ, दैट्स ग्रेट. सो इन कॉमर्स स्ट्रीम इंटरव्यू इसको हाईलाइट करना सही होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा. इनफैक्ट अगर हम देखें तो नेटवर्किंग और मल्टी डिसिप्लिनरी ये हमारी इंस्टीट्यूट ने भी स्टार्ट कर दिया, एंड वी डू नीड सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स ऑल्सो. मेरे ही कुछ क्लाइंट्स हैं जहां पे मैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करती हूँ और मुझे इंजीनियर्स की जरूरत होती है, एंड वी डू हैव इंजीनियर्स इन आवर फर्म एज वेल, अटैच्ड टू आवर फर्म, वर्किंग फॉर आवर फर्म. सो in fact it would be an icing on a cake wherever in you go कि आप मैकेनिकल इंजीनियर होके भी कॉमर्स में जा रहे हैं. ओके I am in placement cell. For this question we could, since we are short of time, we could just come one to one. Placement वाला आप मुझसे directly बात करें. I already have a note to wind up, but there are just 2-3 slides and I would cover up. So how to have overcoming common challenges. आपके पास में common challenges ये आएंगे कि आर्टिकलशिप के साथ साथ आप पढ़ाई कैसे करें. बट ऑफ कोर्स दिस इज टाइम मैनेजमेंट. मैं अभी एक किसी का इंटरव्यू देख रही थी जहां पे उन्होंने ये बोला कि सुबह 4 बजे उठना बहुत डिफिकल्ट है, पर सुबह 4 बजे उठने वाले वो 8 बजे जो उठते हैं उनसे 4 घंटा आगे है. येस, इट इज वेरी ट्रू. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप एट 4 o'clock, बट विद प्रैक्टिस यू कैन डू दैट. और आपको वो 24 आवर्स में से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं जब आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं, अपनी चीजों को प्लान कर सकते हैं. तो यस, अगर कुछ करना है तो हार्डवर्क तो जरूरी है. एंड हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू प्लान थिंग्स, आप आगे से आगे, आज से 15 दिन के आगे की प्लानिंग आप अपने पास करके रखें. जरूर उसको नोट डाउन करके रखें ताकि आप कहीं भूले नहीं. और नोट डाउन करके बिल्कुल अपने सामने, जहां आपके पास में डैशबोर्ड है या अपनी कोई नोटिस बोर्ड है या ऐसी जगह जहां से आप बार बार पास ऑन करते हैं, किचन ही हो वो सही, किचन में आप पानी पीने बार बार जा रहे हैं तो आप वो वहां पे उस नोट को चिपका के रखें, सो दैट इट गिव्स यू रिमाइंडर्स कि आपको ये सब कुछ करना है करना है करना है. वर्कलोड्स जरूर होंगे, मीटिंग्स होंगी, डेडलाइंस होंगी. डेडलाइंस दोनों फॉर्म में होंगी. जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपको ड्यू डेट्स के पहले कुछ काम करने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास ये भी डेडलाइन होगी कि आपको कोई अपनी ITT ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, या आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या एग्जाम्स अप्रोच हो रही है, टेस्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको वर्क करना है. सो बोथ द डेडलाइंस यू हैव टू मैनेज, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू प्लानिंग एंड कीपिंग थिंग्स रिटन डाउन. स्ट्रेस आता है वर्कलोड से, बट यस, हेल्थ भी बहुत मायने रखती है. हैव प्रॉपर स्लीप, हैव प्रॉपर फूड, और अपने हेल्थ के भी बारे में ध्यान रखें. इफ यू आर हेल्दी तो ऑब्वियसली आपका माइंड ज्यादा अच्छे से काम करेगा. डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, यस, कई बारी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं. हो सकता है कोई एक क्लाइंट में आप ऐसे काम कर रहे हो जहां पे आप बिल्कुल फंस गए हो. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक PSU की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है. 28 सितंबर आ गया है, 30 सितंबर को उसका रिटर्न फाइल होना है. अब कैसे करें? डोंट पैनिक, काम योरसेल्फ, एकदम शांत रहिए, शांत रह के सोचिए. मेरे साथ होता था, मेरे आर्टिकलशिप पीरियड में मुझे रात में सपने में पता चलता था कि मैंने बैलेंस शीट में कहाँ गलती की है, एंड यू वोंट बिलीव मी, वो सपना सच में सच होता था, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड माई ब्रेन न्यू दैट. Only thing is I was not able to understand. So yes, I calmed down myself and मुझे वो समझ आता था. नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस जाती थी, लैपटॉप खोलती थी, कंप्यूटर खोलती थी, एक्सेल शीट खोलती थी, एंड मुझे वो डेफिनेटली वो मिस्टेक दिखती थी. सो पैनिक करने से प्रॉब्लम और बढ़ती है. काम योरसेल्फ, टेक एडवाइजेस फ्रॉम योर मेंटर्स, देयर इज नो हार्म इन दैट. आप जाइए, अपनी गलती बताइए कि सर मुझसे ये हो गया. आप कोई सीनियर को बताइए, पार्टनर को अगर आप नहीं बता पा रहे, सीनियर को बताइए, उनसे डिस्कस कीजिए, सर मेरे से ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज गिव मी अ सोल्यूशन. दे आर मोर एक्सपीरियंस टू यू, दे विल हेल्प यू आउट, एंड कीप दैट सेम पेस, कीप दैट सेम साइकिल. जब कोई जूनियर आपके पास आता है उसको भी आप बताइए. आपको लर्निंग ही होगी, अपने सीनियर से भी मिलेगी, जूनियर से भी मिलेगी.
So yes, how to handle this? सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को काम करो, और ये चीज आपको एग्जाम्स में भी काम आएगी। जो आर्टिकलशिप में आप अपने आप को पेशेंट और अपने आप को काम बना देते हो, ये चीज वो 3 घंटे में आपको काम आती है जब आप एकदम पेशेंट हो जाते हो, काम हो जाते हो, एंड देन यू राइट योर आंसर्स, इट हेल्प्स यू अलॉट। सो एज आई सेड कि ये जो 2-3 साल की आर्टिकलशिप है, ये सिर्फ आपको स्टडीज की लर्निंग नहीं, आपके बिहेवियर की भी लर्निंग देते हैं, आपके आसपास में ह्यूमन हैंडलिंग भी सिखाती है। ये सब चीजें आपको एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में भी काम आएगी, एंड आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम आएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके पास में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सिर्फ 24 घंटे है, और 24 घंटे में ही आपको सब कुछ करना है। तो यस, मेक टाइम टेबल्स एंड स्टिक टू देम। प्रायोरिटाइज टास्क, जो चीज 2 दिन में खत्म होनी है उसको सबसे पहले कीजिए, जो चीजें 10 दिन बाद भी हो सकती है उसको उसके बाद कीजिए, बट देन सी टू इट कि आप कोई भी डेडलाइंस क्रॉस ना करें, कोई भी चीज में डिले ना हो। जब आज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स को ये एक बेनिफिट रहेगा कि नहीं, इनके पास जाने से हमारे रिटर्न्स कभी डिलेड नहीं होती है, हमारी काम कभी डिलेड नहीं होती है, हमारे रिपोर्ट्स हमेशा टाइम पे जाते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस पर्सन एंड दे वुड वैल्यू यू। टेक सपोर्ट्स, जैसे मैंने बताया, डेलीगेट योर वर्क। आप अगर ये मत सोचिए कि मैं ही अकेले सब कुछ कर सकती हूँ, यस कर सकते हो, आपके पास में है वो कैपेबिलिटीज, बट देन डेलीगेट योर वर्क। काम बांटने से आपका काम कम होगा, और हेल्प लेने से कोई बुराई नहीं होती है। ओके, सो दिस इज देयर। डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आप अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, चीजें हैंडल कर सकती है। वी हैव सम लास्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी कंक्लूड। Yes, my contact number is there in the next slide, and I am done over here. अगर और कोई questions है तो we take up that, or else आप 1-to-1 yes, ये कुछ 4-5 points है। Making most of your articleship, इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट डेफिनेटली आपका हो रहा है ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप। आप अपने मेंटर के हेल्प से कुछ सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं, कुछ कोर्सेज भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके मेंटर आपको इसमें गाइड करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स तो डेफिनेटली आपकी बढ़ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके आसपास जितने लोग हैं उनके साथ आप करते हो, सीनियर्स से कैसे करना है, क्लाइंट से कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट में आपको बता चुकी हूँ। लीडरशिप स्किल्स जरूर आती है, टीम वर्क में कैसे काम होता है, डेलीगेट करने से कैसे होता है, ये भी आपको समझ आता है। नेटवर्किंग विद इन द फर्म, यस, आज भी मेरे वो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने आर्टिकलशिप में काम किया था, एंड बिलीव मी, सिंस आई डिड माई आर्टिकलशिप इन पुणे, तो वहां के बट आई एम इन भिलाई राइट नाउ, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी सी सिटी से भी मैं पूरे इंडिया में काम कर सकती हूँ। तो दिस इज द वे द पीपल, माई आर्टिकलशिप फ्रेंड्स जो पुणे में हैं, आज वो कोई फर्म के सीईओ है या सीएफओ है, और उनके काम मैं यहाँ भिलाई में बैठ के कर रही हूँ। सो सिटी डज नॉट मैटर, बट येस, नेटवर्किंग मैटर्स, क्योंकि उस समय हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, आज हम लोग एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद कलीग्स एंड मेंटर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। दैट डजंट मीन कि आप जंक फूड नहीं खा सकते, जरूर खाइए, बट देन मेक मोस्ट ऑफ योर पार्ट एज हेल्थफुल। वर्क लाइफ बैलेंस जरूर रखिए। फैमिलीज, फ्रेंड्स, इनसे मिलते रहिए। कभी भी ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब भी ऐसा लग रहा है कि डिप्रेसिव फील हो रहा है, गो एंड चिट चैट विथ योर फ्रेंड्स, गो एंड टॉक विथ योर मेंटर्स, अच्छा लगेगा। And if we have some more few questions quickly, otherwise we wind up over there. In big Mahima firms, do they expect us to know everything, or they help us in the initial phase? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं होता है। इनिशियल फेज में आपको हेल्पिंग जरूर होती है। My contact number, if we note down over here, it is 963-006-0008. I'll just put it in the chat box also. Anji, Mahima was raising her hand. She still wants to ask question. Mahima. I would share the sample resume
and certain things that I have due to short of time मैं अभी वो नहीं share कर पा रही हूँ. I would share it with Nimisha ji and she can do that with all the groups. Mahima, you can ask your question now. Mahima, you want to ask your question, bacha? Hello, good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes, yes, you are. Ma'am, thank you so much for the insight, firstly. And I would like to ask, ma'am, कैसे डिसाइड करें, जैसे कि आपने बोला कि आपने पुणे से किया एजुकेशन, हाउ डू आई डिसाइड कि मेरे को यहाँ से करना चाहिए कि मेरे को आउट ऑफ सिटी भी जाना चाहिए, मिड साइज ही कहीं पर यहाँ से करना चाहिए कि बाहर से? See, my era was 20 years back. जब हमारे पास में ऑप्शंस नहीं थे कि हम हमारे सेम सिटी में रह के बाहर के काम कर सके. सो फॉर मी इट वाज इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट मेरे पास में कोचिंग क्लासेस के लिए भी मेरे सिटी में कोई ऑप्शंस नहीं थे. आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी हो जाती है. सो दैट इज व्हाई आई हैड टू गो टू पुणे. बट येस ऑफ कोर्स आप अपने सिटी में भी रह के आप वो सब काम कर सकते हैं जो बाहर होते हैं. इट इज ऑल अप टू योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, योर अदर कल्चरल बैकग्राउंड्स कि आप सेम अपनी सिटी में रहना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं. बट मैं ये जरूर एक चीज बताऊंगी कि अगर अपने खुद के सिटी में रह सकते हैं और वहीं से काम कर सकते हैं तो दैट इज मतलब उससे अच्छा और कुछ नहीं होता है. बिकॉज यू हैव दैट कंफर्ट जोन. आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो लोग आपको ऑलरेडी नोन होते हैं. बाहर जाना बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंटली हैंडल करनी होती है. इफ यू आर रेडी फॉर दैट तो डेफिनेटली आप बाहर जाइए, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है. बट ऐसा भी नहीं है कि सेम सिटी में आपकी सिटी में आप रह के कुछ नहीं कर सकते हो. यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फर्म्स होती है जिनके बारे में हम नहीं जानते. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अपने सिटी की सारी फर्म्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए, बाहर की सारी फर्म्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए, दोनों चीजों में रिसर्च कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि डू यू हैव बेनिफिट हियर और आउटसाइड. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन महिमा. Yes, ma'am. Naitik, you want to ask your question? Go ahead, Naitik. Meanwhile, somebody has asked कि do we have to attach a CV and covering letter together या अलग अलग कर सकते हैं. See, if you are giving it physically तो वैसे भी वो अलग अलग ही होता है, पर अगर आप इसको बाइंड करके PDF में और फिर मेल करते हैं तो it gives a better impression. Somebody is saying I am from Bilaspur. बच्चा please note down my number and we can talk one-to-one onto it. Naitik has asked this question in the chat box. Okay. Transfer pricing, FTO or forensic apart from traditional work, and if we think about long term, which domain would you recommend we prefer? Yes, of course Naitik, आप ये सारे domains को explore कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फर्म्स के बारे में रिसर्च कीजिए. देयर आर सर्टेन फर्म्स जो स्पेसिफिक डोमेन्स में ही आपको आर्टिकलशिप देती है. पर अगर आप मेरा प्रेफरेंस पूछेंगे, मेरा व्यू पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी कि ये 2 साल की आर्टिकलशिप में आप सब कुछ सीखिए. उसके बाद में वंस यू आर क्वालिफाइड देन यू डिसाइड अबाउट वन स्पेसिफिक एरिया एंड वर्किंग इनटू दैट. क्योंकि हर चीज का नॉलेज होना अच्छी बात होती है. एंड यू नेवर नो कि जो नॉलेज आपने आर्टिकलशिप में लिया है और हो सकता है उसके कारण आपका इंटरेस्ट चेंज भी हो जाए. अगर मेरी ही बात करूं, मैंने आर्टिकलशिप में कुछ स्पेसिफिक एरियाज जैसे बैंक ऑडिट्स, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब काम मैंने अपने कंस्ट्रेंट से नहीं किया था. ऐसा नहीं था कि हमारे फर्म में नहीं थे, पर मैंने अपने ही वो लगाए थे कि नहीं मैं इतने
दूर नहीं जाऊंगी, मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं बियॉन्ड वर्किंग आवर्स काम नहीं करूंगी. एंड बिलीव मी, नाउ आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आफ्टर 20 years ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, अगर आप मुझे कॉस्ट एनालिसिस करने बोले तो मुझे नहीं आता है, क्योंकि ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप मैंने नहीं सीखा, और आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे कोई सिखाएगा नहीं, और मुझे खुद को भी शर्म आएंगी किसी से सीखने में. हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा नहीं होता है, बट नॉर्मली आफ्टर बीइंग अ क्वालिफाइड आपको शर्म आएगी, आपको हिचक आएगी. सो इट्स बेटर कि आपको इंस्टीट्यूट ने 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं सीखने के लिए, हर कुछ सीखिए. आफ्टर दैट यू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट किस में है और उस स्पेसिफिक एरिया में काम कीजिए. Nimisha ji, I guess I am already stealing Gyati ji's time. हमारा सेशन ऑलरेडी काफी प्रोलॉन्ग हो चुका है. सो Yes. जो भी और क्वेश्चंस होंगे, आई विल प्रेफर कि सब 1-to-1 भेज दें हमारी सिकासा कमेटी को, एंड वी विल टेक दोस फर्दर विद यू. In the meanwhile, thank you, Payal for your valuable time, and your expertise and passion for the subject is well evident from this session. And just सिकासा कमेटी मेरठ ने एक फॉर्म निकाला है जिसमें हमने मेरठ से जितने भी लोगों के पास आर्टिकलशिप की अवेलेबिलिटी है या सीएस के सीए ड्रॉप आउट की, तो वो सब लिस्ट डाउन उस एक्सेल शीट में, और हमने व्हाट्सएप पे वो एक्सेल शीट सर्कुलेट भी कराए. So we have around 38 plus CA firms in Meerut looking for CAs, articles and dropouts. So you can just go with that Excel sheet and contact. उसमें सारी information भी है कि किस फर्म में क्या काम है, कौन से पार्टनर से आप बात कर सकते हैं, मेल आईडीज हैं कि आप अपने सीवीज वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं. I think that will be a great help to all the students looking for articleship. And let's move on to the next session. It's a great pleasure, Payal for your time. Thank you so much. And Thank we you will so much, Nimisha ji and Rajiv ji, CIRC, for giving me this opportunity. I hope I have taken a good session and people would be benefited from it. And sorry, Gyati ji, for stealing your time. Thank you so much, Nimisha ji. Okay, ma'am. Thank you so much, Payal. Well, guys, it's a great pleasure that I welcome CA Gyati Gupta to our webinar today. We are privileged to have someone of her caliber and experience to enlighten us on the crucial topic of interviewing skills, a subject that holds immense importance as a transition from student life to professional work. Before Gyati begins her session, I would like to invite Yash Malik, Seminar Head of Sikasa Committee Meerut, to give a brief introduction about Gyati ji. Hello, ma'am. I am audible. Yes, you're audible. Good afternoon, ma'am. It is my honor to introduce C. Gyati Gupta, ma'am, a distinguished chartered accountant from Meerut, specializing in direct and indirect taxes. As the chief editor of the e-newsletter published by the Meerut branch of CIRC, she has been a pivotal force in sharing knowledge with our community. For the past 5 years, C. Gyati ma'am has been dedicated in mentoring newly qualified chartered accountants, helping them to prepare for interviews, and have addressed aspiring professionals at various regional levels. Recently, she has also spoken at the 4th Global Education Summit on conferences on commerce and accounts organized by the Board of Studies (ICAI). An accomplished author, C.A. Gyati ma'am has written over 30 articles which have been collectively read for more than 5 lakh times, enriching the professional and providing valuable insights. Currently, she has been serving as a lecturer at Chaudhry Charan Singh University, where she has inspired and taught over 500 students in BCom and NCom programs. I invite you, ma'am, to share your invaluable insights and remarkable achievements from your journey with our audience. Thank you, Yash. Now, without further ado, I invite CA Gyati Gupta to take the virtual stage and share expertise on mastering interview skills. Over to you, Gyati. Thank you, Nimisha ma'am. Thank you, Yash, for introducing me. And heartiest congratulations to all the newly qualified chartered accountants. You have achieved one of the biggest milestones of your life, and there are many more to go. Thank you, Payal ma'am, for such an insightful session. You have really captivated audience with your insights. And I would like to extend my heartfelt gratitude to C. Rajiv Gupta ji, one of the most learned and able chartered accountants of our city, and hardworking Nimisha ma'am, for providing me this platform where I can interact with you all. So let us begin. Do let me know when my screen is visible to you all. Is it visible? Yes, it is visible. Okay. Thank you, ma'am.
Just a moment. So what will be covering in my session today? I'll be covering the possible responses to the possible questions that might be asked during an interview. I have a request from you all that if you happen to have any queries, you may note them down and we'll take them up at the end of the session. Moving ahead, let us first understand why is interview preparation important. To make you understand it, let us take an example of reality shows. I believe that most of us have watched the reality shows, one or the other reality show, right? It may be anyone, any reality show, be it KBC, Indian Idol, India's Got Talent, Dance Plus, or the abroad reality shows like The Voice, Roadies, even the scripted ones. So why I'm asking this question that we have followed these reality shows, and one thing is common among all these reality shows, which is auditions. So when we see these auditions as a viewer at our home, sitting at our home, and it is the judges sitting over there evaluating the contestant. So do we as a viewer and the judges sitting over there, we know the contestant beforehand? I believe no, until and unless he is some known one or he belongs to our family or he is some relative. So we don't know about that participant, about that contestant. We are not aware the amount of hard work he has put in. We are not aware of the challenges he has faced. We are not aware of the amount of rehearsals, number of rehearsals he has been through. We know nothing, absolutely nothing about that contestant. We, as a viewer and the judges over there, we are going to evaluate that contestant solely on the basis of his 5 to 6 minutes of his performance, right? So similar is the case with interview. Irrespective of n number of years of experience you have, irrespective you were associated with a lot of brand names in your past, irrespective you have studied abroad, or irrespective you have master's degree, of course, these things do count. These things do add value to your resume. But the decisive factor which will get you a job into a company is going to be how well you are going to perform during the interview. जैसे कि चक दे इंडिया में शाहरुख खान बोलते हैं कि आपके पास 70 मिनट हैं, केवल 70 मिनट अपने आप को अपने शो करने के लिए या जीतने के लिए. तो सिमिलरली यू हैव दैट लिमिटेड पीरियड of 30 minutes to 40 minutes to showcase your skills, showcase your talent, and advertise yourself in the best possible way. So that is why we are we are putting so much effort in this area, that we should be well prepared for this interview. One thing I would advise to you that when you are going for an interview, that you do homework about the company, because when you apply for a company on the campus, through the campus, or off the campus, you minimum apply to 5 to 6 companies. And इतना पॉजिटिव हम अपने आप के बारे में हो सकते हैं कि कम से कम एक कंपनी के से तो हमें ऑफर लेटर आ ही जाएगा. Now, imagine the situation that you have applied in different companies and just a minute. You have applied in different companies and you get offer letter from one single company. Uske baad kya? That you started working over there. You're going to spend around 1/3 of your day's time or around half of your day's time into that organization. It is going to consume you mentally. So it is very important कि जो भी आपका जो work place है वो आप decide करो. It should not be the case that you are at the mercy of any organization कि हाँ किसी भी organization से हमें इस time offer letter आ जाए, हमें बस job मिल जाए, उतना काफी है. No, it should not be the situation. You should be firm, you should be assertive enough कि आप अपना workplace choose करो, ना कि company आपको choose करो. Then moving ahead, I would advise one more thing, that when you're going for an interview, keep a tab on the recent news, go through the company's website. Other company, listed company hai, then check its share price. That is going to leave a very good impression in the minds of interviewer that you're not a casual candidate, but a serious one. If you have this information, or अगर आपको information company के बारे में पता है, then you definitely you can put it in any of your answer, any one of your answers, and leave a very good impression on the interview. Moving ahead, अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? एक कुछ खाने की फोटो दिखती है. अब मैं आपसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ that there are two people and if they are referring the same YouTube video to prepare a dish, a common dish, और वो एक ही YouTube वीडियो को रेफर करते हैं,
they add similar ingredients, same ingredients, and they take similar precautions, would they end up making a dish with a similar taste? पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों का टेस्ट डिफर करेगा. डिस्पाइट दे आर रेफरिंग द सेम वीडियो, दे आर टेकिंग द सेम प्रिकॉशंस, दे आर एडिंग द सेम इंग्रेडिएंट्स, they would end up making a dish with a dissimilar taste, with a different taste, right? तो यहाँ पर भी यही होने वाला है that I'm going to guide you कि क्या क्या चीजें आपको अपने आंसर में ऐड करनी है, क्या क्या चीजें आपको अपने आंसर में नहीं बोलनी चाहिए, but it is ultimately you who's going to show up before the interviewer. So हर एक आंसर में अपना स्टाइल होगा, अपने इंसिडेंसेस होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस होंगे. आई एम हियर जस्ट एज अ फैसिलिटेटर, राइट? So let us begin with the very first question, which is a very common one. Tell me about yourself. So first, let me tell you the ingredients which should not be added to your answer. Don't keep it too long. You don't have the complete day to keep narrating about yourself. Keep it quite short. You're just limited to 1 to 2 minutes maximum. Secondly, don't disclose your personal details. आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है, but there are candidates who start telling about their family कि हाँ, that I am so and so, I belong to this city, we are 4 brother and sister. मेरी जो sisters हैं वो मेरे से elder हैं, वो बाहर काम करती हैं, they are married, मेरी family में इतने लोग हैं. So you don't need to disclose your personal details until and unless you are specifically asked to. So you have to keep it short. You have to keep it quite professional. Don't disclose your personal details. And then what else? So अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीजें ऐड नहीं करनी है. अब क्वेश्चन है कि इसको हमें स्टार्ट कैसे करना है. So the ingredients which should be added to your answer. Ingredient number 1, that you can begin it with stating your name and your recent qualification. Then ingredient number 2, that you can tell about the mini work experiences you have been exposed to during the time of your articleship, and you can also tell about your certifications, recent certifications. We'll see how well these ingredients are mixed up, and I'll show you a simple answer. तो जब हम बात करते हैं कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, तो you can also add your achievements that can be quantified, right? So you start telling your name, your city, your work experiences, along with your achievements that can be quantified, your recent certification, and then you can end and conclude your answer by stating your personal accomplishments and your personal interest. And one more thing, I would like to suggest you कि जब आप अपने पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बताते हैं या पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं, तो मेक श्योर कि कोई भी चीज आप ब्लफ ना करें, कोई भी चीज से बोलने के लिए ना बोलें. जैसे कि पायल मैम ने भी बोला था, अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं सो ट्राई कि उस चीज में वो चीज जेन्युइन लगे और जेन्युइन साउंड हो, बिकॉज इंटरव्यूअर कैन आस्क एनीथिंग whatever you are speaking, and he can elaborate on any point. तो अब हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स समझ में आ गए, हमें वो इंग्रेडिएंट्स भी समझ में आ गए जो हमें ऐड नहीं करने. लेट अस हैव अ क्विक लुक ऑन द सिंपल आंसर, हाउ वी कैन फ्रेम इट. You can say that my name is Ravi Prakash. I am from Saharanpur. I have recently completed my chartered accountancy in May 2023 attempt. I have completed my articleship from Kukreja and Company and had exposure to bank audits, finance, and ROC work during my articleship. I had the chance to lead the articles team in the 3rd year of my articleship. I, along with my team, successfully detected the revenue leakage of rupees 1 lakh during the concurrent audit of one of the nationalized banks. अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. अभी आपने नेम स्टेट करा, आपने सिटी स्टेट करी, आपने बता दिया कि आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कौन से अटेम्प्ट में क्वालिफाई करी थी, आपने आर्टिकलशिप किस डोमेन में करी है, वो आपने बता दिया. नाउ द पॉइंट व्हिच आई वाज टॉकिंग कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको क्वांटिफिकेशन करने की बात जो मैंने बोली थी, उसको देखते हैं. अगर मैं इस लाइन को ऐसे बोलती, आई अलॉन्ग विद माय टीम सक्सेसफुली डिटेक्टेड द रेवेन्यू लीकेज ड्यूरिंग बैंक ऑडिट, तो ये बात अधूरी सी लगती है. बट द मोमेंट व्हेन यू एडेड रुपीज 1 lakh, you added the quantity to your answer, it added weightage to your answer. तो उसमें आपका ये समझ में आ गया कि कितनी रेवेन्यू लीकेज आपने डिटेक्ट करी. एंड इट्स कोर्स रेवेन्यू लीकेज इज वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव इश्यूज. तो जब आप 1 लाख रुपए की रेवेन्यू लीकेज को हाईलाइट करते हैं, सो यू आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि हाँ आपकी ये अचीवमेंट्स थी. Moving ahead, you can add, besides this, I have also authored various articles on text which are published on various platforms like CA Club India, TextGuru.
One of the article was even published in Members Journal of Saharanpur branch of CIRC. तो इसमें ऑफ कोर्स आप ऐड कर सकते हैं जो भी न्यूज़लेटर्स में आप आर्टिकल देते हैं, हर ब्रांच का जनरली एक न्यूज़लेटर होता ही है, तो उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज एन ऑथर तो वो चीज़ आप यहाँ पे स्टेट कर सकते हैं। और एक बात और जो पायल मैम ने भी ऐड करी थी कि अगर आप किसी कल्चरल इवेंट में का पार्ट रहते हैं, कल्चरल कमेटी का पार्ट रहते हैं, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। Then you can conclude your answer by stating your interest, personal interest. You can say, in addition, I'm very passionate about cricket and painting. And as I've already stated that you have to be mindful of about everything you are stating before the interviewer. क्योंकि आपने अपना आंसर कैसे कंक्लूड करा है, वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड पेंटिंग, और उसने क्रिकेट के बारे में आपसे पूछ लिया कि अभी कौन सा क्रिकेटर रिटायर हुआ है, और आपको अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो वो क्या इंप्रेशन देगा कि आप अपने बारे में ब्लफ कर रहे हो, नॉट जेन्युइन इन व्हाटएवर यू आर सेइंग. So you have to be mindful about all these points. With this, we move to the next question, which is about strength and weaknesses. Now, you have to understand the intent of the interviewer, why he is asking this question. If he is asking this question to analyze कि आपने अपने आप को अच्छे से analyze किया है कि आप अपनी strength बता पा रहे हैं और अपनी weaknesses बता पा रहे हैं या नहीं. तो जब बात आती है strength की, तो it is my suggestion कि strength आपकी कुछ भी हो सकती है, that you are very good team player, you are very good at time management, you may be you may have good leadership quality. आपकी strength कुछ भी हो सकती है, but don't limit it to just one word. आपको आपके आंसर में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, should have the element of why and how. कि वो आपकी strength आपने बता दी, but आपको उसमें why का एलिमेंट भी ऐड करना है, और कैसे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे. You can say that over the past 3 years, I have worked in different domains. I have conducted tax audits, even appeared before income tax authorities in the capacity of a representative. As the lead of my team in my office, I even had the opportunity to learn about sales and marketing while talking to new clients. So this is how you should answer your question. Moving ahead, अब बात आती है weakness की. So don't come up with the answer कि sir I don't think I have any weakness, because ये कैसे साउंड करेगा that you are too arrogant to admit your weaknesses, because weakness सभी की होती है. ठीक है, अब एक थॉट आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अगर मैं वीकनेस अपना बता दूंगा तो मतलब एक तरह से मेरे लूज पॉइंट्स इंटरव्यूअर के पास चले गए, या फिर एक नेगेटिव इंप्रेशन इंटरव्यूअर को कन्वे होगा. तो इसका एक तरीका क्या है कि whenever you are stating your weakness, so start stating the possible solution. कि हाँ, आप अगर कोई अपनी वीकनेस स्टेट कर रहे हैं तो आप उसको ये भी बताइए, उसको एक तरह से ये एश्योरेंस भी दीजिए कि आप अपनी वीकनेस पर काम कर रहे हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने उसको अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है. ठीक है, सो द बेस्ट वे टू स्टेट योर वीकनेस इज टू स्टेट इट विद द पॉसिबल सोल्यूशन. और सेकंड तरीका है कि आप अपनी वीकनेस अगर इस तरह से स्टेट कीजिए कि वो वीकनेस ना साउंड होकर आपकी स्ट्रेंथ ही साउंड हो. Let us have a quick look at the sample answer. You can say that I work too hard sometimes and care too much about my work. I take my tasks back home and work even during the weekend. तो आपने क्या बताई अपनी वीकनेस कि मैं बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हूँ और इसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता. तो ये कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस नहीं लग रही है, बट ये इट इज साउंडिंग मोर लाइक अ स्ट्रेंथ. You can call me a workaholic, but my family always points out that this is not right. And how I'm improving it? Slowly and steadily, I'm realizing that speed and working smartly are the key. So I have begun to reach out to my colleagues for ready-to-use workarounds so that I can give more time to my family. So this is how you can frame your answer. Not spoon-feeding you, but I'm just telling you the recipe, what should be added, what element should be added to your answer. Moving ahead, let us have a look at another sample answer. You can say, sometimes I find it hard to manage my time and cut loose to the deadlines. And how I'm improving it to overcome this, I have started tracking my daily progress via daily planners and sticky notes. It is done so as to remind myself of all the deadlines. I even organize with my calendar to include my daily and weekly long-term tasks. So ये कैसा impression देता है that you are not a person with problem, but you are a person with solutions as well. Moving ahead, there may be chances कि आप में से कुछ लोग अभी ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई हो और आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो. So this question will be asked to you that why are you leaving your previous job or why you have left your previous job. तो इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है that you do not have to tell or state any bad words about your previous company.
ठीक है, आप कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स थी, वहाँ पे मेरे को मतलब बहुत दबाया जा रहा था, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही थी। ठीक है, कुछ भी गलत चीज या कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स आप अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं करने हैं, बिकॉज नो इंटरव्यूअर भी उनको कैसा इंप्रेशन रहता है कि गलती दोनों साइड से रही होगी, आप सिर्फ केवल अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं। तो ऐसा आप सिचुएशन ही मत आने दीजिए कि जहाँ पे आपको मतलब कि इस तरह से जज किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए कि गलती कुछ ना कुछ इसकी भी होगी। तो आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना है, यू कैन आंसर इट डिप्लोमेटिकली, यू कैन से दैट आई रियली लर्न एंड इम्प्रूव्ड अ लॉट एट माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, उसको अप्रिशिएट कीजिए पहले, and then you can come up. It is just that I don't see any further prospects for learning and growth over there. Hence, I've started looking for new roles which can offer me continuous learning and consistent growth. Right? I hope I'm clear onto this. Uh, then, moving ahead, we have the next question. Justify number of attempts to clear CA finals. Now, this question may sound very negative to you कि आपको इतने ज्यादा attempts लग गए सीए फाइनल में, इसका क्या रीजन है? तो इंटरव्यूअर्स आस्किंग अ नेगेटिव क्वेश्चन टू यू, इसका सोल्यूशन क्या है? किसी भी नेगेटिव क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है? दैट स्टार्ट टेलिंग देम द पॉजिटिव साइड। आप बोलो कि हाँ मुझे लग गए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यस आई टुक क्वाइट रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर माय सीए फाइनल्स, बट आई वाज डिटरमाइंड, मैं बिल्कुल फर्म था, डिटरमाइंड था। ठीक है, आई नेवर गिव अप। After every single attempt, I used to analyze where I was lacking and I started working on that area, and finally I'm able to sail through it, I'm able to crack it. So इस तरह से ही आपको उसको आंसर करना चाहिए, बिकॉज आप रियलिटी तो नहीं चेंज कर सकते, आपको अटेम्प्ट्स लगे हैं तो लगे हैं, बट आप उसको एक एश्योरेंस दो कि हाँ अटेम्प्ट लगे हैं बट मैं फर्म था, डिटरमाइंड था, राइट? Then we have the next question. Where do you see yourself in next 5 years? अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, तीन आंसर नहीं देने हैं। Don't come with the answer like this that I visualize myself as CFO or CEO of this company. Of course, आप में कैलिबर हो सकता है कि आप उस कंपनी के CFO बन भी जाएं, but at that moment of recruitment, that particular answer sounds very superficial or unrealistic. तो इसलिए don't come up with such answers. Secondly, don't say कि I visualize myself working as manager in another company, because recruitment is definitely a very painful process. और कोई भी कंपनी आपको इसलिए हायर नहीं कर रही है कि आप आगे जाके किसी और कंपनी का एसेट बन जाओ। कंपनी आप पर ट्रेनिंग में भी पैसा लगाएगी, टाइम भी लगाएगी, आपको पूरा ट्रेन करेगी। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं कर रही है कि आप किसी और कंपनी में अपने आप को विजुलाइज कर सकें। ठीक है, तो डोंट कम अप विद सच आंसर्स ऑल्सो। एंड इसके अलावा आप ये भी नहीं बोलेंगे दैट आई विजुलाइज माई सेल्फ इन योर पोजीशन, कि हाँ आप जो आपका रिक्रूटर है आप उसी का, आप ये उसको ये इंप्रेशन मत दीजिए कि आप उसका रिप्लेसमेंट बनकर आने वाले हैं कंपनी में। सो इस तरह के आंसर आपको नहीं करने हैं। एक सेफ आंसर क्या हो सकता है इसका, कि जिस भी डोमेन में आप जा रहे हैं, टैक्स ऑडिट में जा रहे हैं, आप ट्रेजरी में जा रहे हैं, किसी भी डोमेन में आप जाते हैं, तो उसमें ही आप बोलिए दैट आई विजुलाइज माई सेल्फ 5 years down from now, I would like to see myself having an end-to-end expertise in the domain of direct access, and my current goal is to find a career spot that ensures continued growth alongside new challenges daily. तो जिस भी रोल के लिए आप हायर किए जा रहे हैं, उसी रोल में आप बोलिए कि उसी रोल में आप अपने आप को एक हाई एंड पोजीशन पर देखते हैं या प्रमोटेड पोजीशन पर देखते हैं। I know that this job will provide me that opportunity, and even excited about developing my managerial skills, and in the next couple of years, possibly even take the lead on some projects. Then the next question, you have no prior experience, so why should I hire you? So of course, ये भी एक negative question है। तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको क्यों हायर करें? तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यही चीज आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में बोलनी है कि कहीं ना कहीं से मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ उसको मैं बहुत diligently स्टार्ट करने जा रहा हूँ। I'm going to put all my efforts into this job. You can come up with the answer like this. You might think that since I have never worked in my life and this is only my first job, my experience is my weakness, but I beg to differ. I'm a fast learner and very open-minded. I assure that I do not carry any preconceived notions regarding how I feel I should perform my job. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं कि किसी भी क्वेश्चन पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो यू हैव टू रिमेन कूल एंड काम, और एक पॉजिटिव इंप्रेशन आप इंटरव्यूअर को दीजिए, एंड दैट इंप्रेशन शुड साउंड जेन्युइन
अनरियलिस्टिक नहीं लगना चाहिए. Moving ahead, willing to relocate to move to another part of the country or to work abroad. Now, when this question comes up before the interview, तो दो सिचुएशन पॉसिबल हैं. अब दो सिचुएशन क्या कि क्या तो आपको कंपनी की पॉलिसी का पता है कि कंपनी रिलोकेट कहाँ पर करवाती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कहाँ पर भेज रही है, वेयर इट इज सेंडिंग इट्स एम्प्लॉयज आफ्टर दे आर हायर. तो आपको उसका पूरा पूरा आइडिया है. उस केस में ऑफ कोर्स आपने पूरी कैलकुलेशन की ही हुई होगी, ठीक है, आपको एक आइडिया होगा. सो आप उसको एक डेफिनेट आंसर दे सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं. बट दूसरा सिनेरियो क्या पॉसिबल है कि आपको कंपनी की पॉलिसी के बारे में नहीं पता और कंपनी डिफरेंट लोकेशंस पर अपने एम्प्लॉयज को भेजती है. तो उस केस में बाय द टाइम फ्रॉम द कंपनी, और आप इसको डिप्लोमेटिकली आंसर कीजिए, बिकॉज रिलोकेशन इज नॉट इजी. रिलोकेशन का क्या मतलब है कि आपको यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड विल बी एक्सपोज्ड टू ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कल्चर. और वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं जिस जगह पर कंपनी भेजना चाह रही है आपको. मोर ओवर देयर इसको आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पर इवेलुएट करना पड़ेगा स्पेशल को, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी विलिंगनेस है कहीं जाने की या नहीं. मोर ओवर इज योर फैमिली विलिंग टू सेंड यू आउटसाइड, आपके पास आपका रोल क्या है इस टाइम फैमिली में. तो आपको सारी ही पैरामीटर्स पर इस चीज को इवेलुएट करना पड़ेगा और हो सकता है उस मोमेंट पर आप इसको आंसर ना कर पाओ. सो यू कम अप विद अ डिप्लोमेटिक आंसर लाइक दिस. I would definitely consider it if the opportunity given to me is appropriate, rewarding, and feasible. I don't think I'll have any issues with the relocation fee traveling involved. So this is the diplomatic answer, and this is how you can escape from any situation. Then moving ahead, how do you feel about working weekends and night shifts? तो यहाँ पर भी there can be two school of thoughts, two school of parallel thoughts. कि कुछ लोग इसको एडवोकेट करते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं अभी हमें सारी चीजें सीख लेनी चाहिए, ठीक है, अभी टाइम है, हमें मतलब इसी ड्यूरेशन में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, वी शुड बी फोकस्ड ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स. और कुछ लोग इस स्कूल ऑफ थॉट को एडवोकेट करते हैं दैट देयर शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस इन विद द कंपनी. सो इसको आप कैसे आंसर कर सकते हैं? For those who are supporting working beyond business hours, they can say that I'm a fresher and I hardly have an exposure to the corporate world. उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कह के कि हमने आर्टिकलशिप टाइम में भी बहुत ज्यादा काम किया है, स्ट्रेच किया है, so we are used to it. So back in articleship days, weekends were no different from weekdays for us. The assignments and the tasks had to be carried out within deadlines, and to do so, we would study during the weekdays. As far as the night shifts are concerned, I would like to say that I'm a nocturnal person and I like to do my studies generally at night. I have no issues working during weekends and at night, provided I get enough compensatory offers to relax and wind down. So this is my recommendation to you कि ठीक है आप इस चीज को एडवोकेट जरूर करते होंगे, but you should be in the position to ask for compensation अगर आप business hours के beyond काम कर रहे हैं. So you should definitely add this line to your answer that I have no issues working during weekends and at night, provided I get enough compensatory offers to get to relax and wind up. Then let us have a look for those who are against working beyond business hours. तो वो किस तरह से इसको पुट अप कर सकते हैं बिफोर द इंटरव्यू. दे कैन से कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, आज के टाइम में, और मैं उसी को एडवोकेट करती हूँ. बट इसमें आप एक चीज और एड ऑन कर सकते हैं विच विल सी. यू कैन से सर माय बॉडी क्लॉक हैज गॉट ट्यून्ड इनटू रेगुलर वीकडेज शिफ्ट्स फ्रॉम 9 to 6. I'm not comfortable working nights and weekends on a regular basis unless there is some urgent deliverable or a resource crunch at the team. I'll surely pitch in. So this is very important to add into your answer कि हाँ आपने ये चीज भी पुट कर दी इंटरव्यूअर के सामने कि आप इसको एडवोकेट नहीं कर रहे, बट एक अश्योरेंस भी दे दिया कि हाँ कभी कभी अगर ऐसा होता है, कोई अर्जेंट डिलीवरेबल आता है, so I'm definitely going to pitch in. But working odd shift is not good for mental and physical health of employees, and I hope you understand the same. Yet if the company needs my presence mandatorily at night or during the weekend for continued growth and success, I'll definitely work for it. So this is how you should answer it. Then moving ahead, how long do you think you will work for us after we hire you? तो इसमें आपको ऐसे नहीं बोलना कि मेरे को लगता है कि मैं 2 साल तक आप लोगों के साथ काम करूंगा और उसके बाद आई टेक अ स्विच. इतना ऑनेस्ट नहीं होना, ठीक है. आपके कोई भी प्लान्स हो सकते हैं कि हाँ आप 1 साल इस कंपनी में काम सीखना चाहते हैं, 2 साल इस कंपनी में काम सीखना चाहते हैं, बट डोंट स्टेट योर ट्रू इंटेंशन बिफोर द इंटरव्यूअर.
और या फिर आप ऐसे भी इस तरह के आंसर भी मत दीजिए कि आई एम थिंकिंग कि 2-3 साल में आप लोगों के साथ काम करूँ, उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ। इस तरह के आंसर मत दीजिए, बिकॉज हो सकता है आपने टेक्निकल राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, बट बिहेवियरल राउंड में जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तो सिर्फ आपका ये आंसर सुन के वो आपको आउट कर दें कि हाँ, इनका लॉन्ग टर्म गोल नहीं है हमारे साथ एसोसिएटेड रहने का, या फिर इनके तो इंटेंशन ही ये है कि प्रैक्टिस में जा आगे अपने आप को प्रैक्टिस में स्टेब्लिश करेंगे या कोई स्टार्टअप में स्टेब्लिश करेंगे. सो डोंट कोट योर ट्रू इंटेंशन हेयर इन दिस क्वेश्चन. So इसको कैसे आप आंसर कर सकते हैं? You can say that my fresher and nothing can be better for me than starting my professional career in a reputed company like yours. If everything goes well, I'll be looking forward to a long stint here as long as the company needs me, or as long as my contributions are valued. I'm going to stay into this company. Then moving to the last question, salary expectation. कि salary क्या है ये discuss कर लें. तो अब इसमें 4 सिनेरियोस पॉसिबल हैं कि आपने कंपनी के बारे में होमवर्क किया हुआ है, आपको पता है कि कंपनी का बजट क्या है, सैलरी पैकेज कंपनी क्या ऑफर करती है, ठीक है. तो एक तरीका, एक सिचुएशन तो वो है, बट स्टिल मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि whenever you are negotiating your salary, don't come up with a definite figure कि वो पूछ रहे हैं आप कितनी सैलरी लोगे, आप कहोगे 11 लाख या 12 लाख. So don't come up with this answer. Always try to quote a range. ठीक है. तो एक सिनेरियो पॉसिबल है जब आपको कंपनी के पैकेज के बारे में पता है, you can come up with say I have around 2 years of experience as an audit manager. In addition, you can of course customize it according to your situation. In addition, you can आप इसमें अपनी articleship का experience narrate कर सकते हैं. So in addition, I also have experience in different domains, which will definitely be beneficial for this job. Hence, considering my experience and my current earnings, I expect an annual salary between rupees 10 to 12 lakhs, and it is negotiable. तो दो चीजें हमने इसमें से पिक करनी है कि एक तो आपको एक रेंज कोट करनी चाहिए rather than quoting a definite figure, and secondly keep a room कि वहां पे नेगोशिएशन हो सके. तो आप इसको बोलिए कि इट इज नेगोशिएबल, राइट. देन सेकंड सिचुएशन कि जहां पर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं बट यू नीड मोर क्लैरिटी फॉर योर रोल, ठीक है. तो आप कैसे एक आंसर कर सकते हैं उसको? यू कैन से थैंक यू मैम एंड सर, वंस माय रिस्पांसिबिलिटीज आर क्लियर आई कैन स्टेट एन एग्जैक्ट फिगर. Right now, I would like to know what my potential manager expects from this job position in your organization. तो आप कहीं ना कहीं ये चीज जानने की कोशिश कीजिए कि आपका एग्जैक्टली जॉब रोल होने क्या वाला है. After this discussion, maybe we can both meet a conclusion about my future remuneration. तो इस डिस्कशन को आपने for the time being defer कर दिया इस आंसर के थ्रू. Then next situation possible कि जब आपने कंपनी के ऊपर डाल दिया, आप कंपनी से कह रहे हो कि आप अभी भी तो आपने उस रोल में किसी ना किसी को हायर कर रखा होगा, तो आपका कोई ना कोई तो बजट होगा, तो आप मुझे वो बजट बता दो. So you can say, I'm sure your company is already paying a specific package to someone in a similar position. Hence, I would like to know your budget. If you do not mind, accordingly, I can put forth my expectations. So you have put ball in their court through this answer. अब हो सकता है कि ना तो आपको बजट पता कंपनी का, ठीक है, और ना ही उस रोल में अभी कोई काम कर रहा है, कोई फ्रेश टीम है, और उसके बाद आपको क्लैरिटी भी है, तो अब उसको कैसे आप आंसर करोगे? You can say you can come up with the safest answer. You can say my salary expectations are in line with the current industry standards according to my experience and qualifications. तो आपने सीधे सीधे बोल दिया कि जो भी current industry standards चल रहे हैं उसके according मेरी salary expectations हैं, उसी के according आप मुझे pay कर दीजिएगा. So this is how you can answer this question. So that was all from my side. So I have listed few of the frequently asked questions during interview. So if you have any questions, I'm definitely willing to answer them and take up them. Anyone wants to ask any question? Okay, we will be forwarding Gyati's number and her PDF to the participants. So thank you so much, Gyati, for the invaluable session. We really enjoyed and hope the participants also learned a lot from you. Thank you so much. And we hope कि मेरठ सिकासा टीम आपको बुलाती रहे नए seminars और webinars के लिए. So thank you so much for your time, and it was a lovely session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone, for being with me and for your undivided attention. Thank you, ma'am, and everyone. Thank you, everyone.
for joining this session. Hope you have a great day ahead. Ma'am, should I end? Ma'am, should I Yes, end? sir. Yes, sir. Yes, sir. You should end this session.